A very good afternoon to everyone. So, firstly, congratulations to all of you for having come. We've started our magical journey, and we have just taken a few steps, and today we will move ahead. हम लोग एक स्टेप और आगे जाएंगे अपनी मैजिकल जर्नी की ओर. Before we start today's session, I would request Mrs. Sweetie Agarwal. She will be doing a unique exercise with us. This is called mirror work. So, Sweetie Di, welcome. And I would request you कि आप हम सबसे शेयर करें कि मिरर वर्क क्या है और कैसे हम इसे करें और हमें ये करने से हमें क्या फायदा होगा. Hello everyone. So we start a mirror work. Mirror work क्या होता है? सबसे पहले हमें खुद से प्यार करना चाहिए. अगर हम खुद से प्यार करने लगेंगे तो हमें ये दुनिया, ये लोग, हमें वो उनसे भी प्यार हो जाएगा. तो सेल्फ लव इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू अट्रैक्ट एवरीथिंग. तो पहले हमें सबसे प्यार करना चाहिए. इसके लिए हमें कितने लोग अरे आई एम नॉट गुड टू लुक एट, मेरे बाल अच्छे नहीं है, अरे मेरे सर पे बाल नहीं है, मेरा कम्प्लेक्शन डार्क है. तो हम अपने आप को इतनी कंप्लेन करते रहते हैं अपने खुद के बारे में कि हमें अपने लिए को प्यार जगा ही नहीं पा रहे हैं. तो अपने लिए, खुद के लिए प्यार जगाने के लिए सबसे जरूरी है ये चीज. अगर आप खुद से प्यार करने लगोगे तो ये दुनिया आपको इतनी अच्छी लगने लगेगी कि हर एक चीज में आपको बस प्यार ही प्यार दिखेगा. तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आज हम करने जा रहे हैं. तो अगर आपके सामने मिरर है तो मैं चाहती हूँ सब कोई मिरर के सामने खड़े हो जाए. अगर मिरर नहीं है तो कैन पुट योर मोबाइल फोन ऑन सेल्फी मोड where you can see yourself, and whatever I'm saying just repeat yourself. You have to take your name in between. तो क्या सब रेडी है इसके लिए? Everybody unmute yourself and just say yes, we are ready for being loved ourselves. Everybody please unmute yourself. Yes, we are ready. No voices please. Yes, we are ready. Yes, hear you all. Please be loud and say yes, we are ready to self-love ourselves. Yes, we are ready. Yes, we are ready. So can we start with it? Yes. तो मैं जैसे बोलूंगी आपको भी मेरे साथ रिपीट करना है and you have to take your name. Okay? So put your hand on your heart. आपने हाथ को अपने हाथ पे रखिए and just start saying. आप सब मेरे साथ बोलेंगे I love you sweetie as you are. I love you. I love you, sweetie, as you are. Take your name, please. Yashashvi, whatever name, Shalini and all that. Please take your name. Okay? I love you, sweetie, as you are. I love you. I love you as you are. And I love you as you are not. And I love you as you are not. I respect you, sweetie, for what you are. I respect you as you are. And I respect you for what you are not. And I respect you for what you are not. I accept you, sweetie, as you are. Please repeat. I accept you, sweetie, as you are. I accept you, Asha, as you are. And I accept you as you are not. And accept you as you are not. I'm grateful, sweetie, for everything you have done for me. I am grateful, Asha, for everything you have done for me. And I'm grateful for everything you have not done for me. I am grateful for everything what you have not done for me. I love you. I really love you and love you and love you. I love you. And we just hug ourselves and be proud of yourself first. Just hug yourself. Yes, we are the best. We are the best. Everybody please allow we are the best. I am the best. I am the best. I am the best. I am the best. तो ये एक्सरसाइज अब रोज आप लोग सबको मिरर वर्क के सामने कहेंगे अपने आप को कि जैसे मैं हूँ मैं अपने आप को वैसे एक्सेप्ट कर रही हूँ, जैसी हूँ जैसी नहीं हूँ, दोनों तरह से मैं अपने आप को वैसे एक्सेप्ट कर रही हूँ. I love you all. Sweetie ji, I would request you to please write it and post it in the group so that every day we can do it. Okay? Thank you. You all can also write it and post it, put it as your screen saver or anything like that also. तो हमेशा जब भी फोन खुलेगा
या कुछ है तो we can see that and we can read it. Even that would be a very nice way to do it. Thank you everyone for the Thank you very much. Thank you very much. So shall we start? Today's topic is very interesting again. Today's topic is money, and today it is money magnet. तो last जब हम लोगों ने money के बारे में किया था, that time we had discussed how to be grateful for whatever money we have received till now. लेकिन जो आज का जो topic और session है ना, that is going to be very amazing because this is going to teach us how to become money magnet. यहाँ पे किस किस को पैसा चाहिए? मेरे को तो बहुत सारा चाहिए, इसलिए मैंने दोनों हाथ उठाया. Yes. So we all need money because money is one of the most strongest forms of energy. Money is, सबसे important इसीलिए क्योंकि ये पूरी जो पृथ्वी है, पूरा ब्रह्मांड है ना, सब एनर्जी ऊर्जा से चलती है. और ये जो मनी है ना, this is one of the most important forms of energy. एनर्जी एक्सचेंज अपने बोलते हैं ना. तो देखा जाए पैसे की अहमियत इसीलिए क्योंकि पैसा से हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं और कुछ भी ला सकते हैं, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं. इसीलिए मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब ये मनी को कैसे अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, उसके लिए जरूरत है कि हम लोग एक मनी मैग्नेट बन जाए. ऐसे देखा जाए, इफ यू गो बाय आवर हिंदू फिलॉसफी, हम लोगों को स्पेशली विमेन लेडीज को तो बोलती है लक्ष्मी की रूप का रूप. हम लोग तो है ही लाइक सर्व संपन्न लक्ष्मी ही है हम लोग. फर्क ये है कि ओवर द टाइम बिकॉज ऑफ दीज इन्वेजन्स, बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स, हम लोग अपना ये स्वरूप को भूल गए. हम लोग भूल गए कि हम लोग उस श्री के रूप में, हम लोग ही लक्ष्मी स्वरूप है. और हम लोग अब इसीलिए वी आर ट्राइंग टू जस्ट डू दिस स्मॉल एक्सरसाइज ताकि कैसे हम लोग अपने उस प्रभुत्व को वापस पहचान सकें. हाउ वी कैन एंटर एंड टैप that infinite energy of like money energy, श्री एनर्जी जो बोलते हैं, उसको कैसे हम लोग फिर से टैप कर सकें और अपनी लाइफ को संपन्नता से भर सकें. So are you all excited for today's session? Can I hear a big yes? Yes. Yes. Okay, great. So looking forward to learn some very nice things how to become a money magnet. So yes, sweetie, let's start. And who would like to lead today's session? Can I read? Shall we? Great. Let's start. So sweetie, let's start today's session. So can anybody explain me what we can see in this picture? There are पैसा है, चारों तरफ पैसा ही पैसा. पैसा ही पैसा है. मदन से लेना चाहेगा. हाँ, कौन इस पैसे को अपने पास लेना चाहेगा? आसमान से पैसे हमारे पास गिरे जा रहे, कौन लेना चाहेगा? मैं लेना चाहूंगी. Let us turn to the question for money. How can we attract money? So let's start the conversation. Yeah. It is only with gratitude that life becomes rich. By Dietrich Bonhoeffer. उन्होंने क्या बोला है? केवल थैंक यू. ये अगर हम शुक्राना में रहे तो लाइफ इतने अबंडेंस में रहेंगे, इतने रिच हो जाएंगे कि हमें इसका अंदाजा भी नहीं होगा. पैसे हम भरपूर, हमारे पास पैसों की बारिश खुल जाएगी. तो एक छोटा सा फीलिंग के साथ, एक छोटा सा थैंकफुलनेस के साथ अबंडेंस ऑफ मनी हमारी लाइफ में आ जाएगी. तो बस ये हम चाहते हैं कि जब भी आप पैसे को यूज करें या जिस तरीके से आप पैसे ले रहे हो या उसको दे रहे हो, बस उसको फीलिंग के साथ दें. ये नहीं कि अरे आज गैस वाले आ गया, इसे पैसे देने पड़े, मुझे कभी नींद में उठ के देने पड़े. जब भी आप पैसे किसी को दे रहे हो फीलिंग्स के साथ दें, और जब भी आप पैसे किसी को आप मिल रहे हो उसको भी फीलिंग्स के साथ अपने पास रखें. फीलिंग्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं अपने लाइफ में, और उसे हमेशा थैंक्स गिविंग कीजिए. पैसा ऐसी चीज है
तो आप हमेशा अगर थैंकफुल करोगे ना, तो देखोगे अपने पास इतने भरपूर में आएंगे कि आप खुद भी अंदाजा लगा नहीं पाओगे कि अरे ये हमारे पास कैसे आ गए, हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था। और कितने बार मैंने देखा है कि भाई अरे आज ही मेरे से 10 रुपया ज्यादा ले लिया, आज ही गैस वाले ने ऐसे ले लिया, आज मुझसे ऐसे ले लिया, तो उसके लिए दुखी मत होइए। वो पैसा अगर किसी ने आपसे चीट करके लिया है तो रहेंगे कहीं न कहीं से, क्योंकि आपके पास जरूर आएगा। क्योंकि पैसे से दुखी होके मत दीजिए, हमेशा खुश रहिए अपनी फीलिंग्स के साथ। Gratitude is riches and complaint is poverty. It's the golden rule of your whole life, whether it's your health, job, relationships or money. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. So what is this? Gratitude is riches. जितना हम gratitude एक ऐसा वर्ड है जिससे हम मतलब एक रिच क्वालिटी का वर्ड है। एंड कंप्लेन क्या, अगर हम जितना कंप्लेन करेंगे अपने नीचे जाते चले जाएंगे, और जितना हम थैंकफुल में रहेंगे भगवान जल्दी देंगे और नीचे अपने आप पहुंच जाएंगे। और जितना हम कंप्लेन करेंगे अरे यार ये कैसा है, उससे जेलस होंगे, जितना कंप्लेन करेंगे उतने हम अपने आप को अपने नीचे गिराते जाएंगे। और ये एक लाइफ का गोल्डन रूल है जिसे हम सबने अपना लेना चाहिए कि पाबंदी नहीं है, तो उसमें भी आप खुशियां ढूंढिए कि हमें क्या पॉजिटिव मिल रहा है अपने रिलेशनशिप में। चाहे मनी का चीज हो, मनी के लिए भी अरे मेरे हस्बैंड में आज मुझे 10 इतना काम दिया, मुझे घर खर्चा नहीं दिया, उसमें नहीं। पर आप ये करिए कि जब भी आप कितने ऐशो आराम से रह रहे हैं, आपके पास रहने के लिए इतना अच्छा घर है, घूमने के लिए गाड़ी है, इतने कुछ नहीं है जैसे आपने उसके लिए कभी थैंकफुल ही नहीं। और ये हमें कैसे मिल रहा है, हमारे पास पैसे हैं तभी हम कितने ऐश की लाइफ जी रहे हैं। अगर हमारे पास पैसे नहीं आएंगे तो कैसे होगा? तो एक छोटी चीज अपनी लाइफ में ढूंढिए जिससे आप पैसे से वो चीज खरीदें और अपनी लाविश लाइफ से एंजॉय करें। कभी भी इसके लिए दिल की कीमत करें कि भाई आज उसके पास ये है, मेरे पास ये है। अगर आपके पास एक छोटी गाड़ी भी, आप उसके लिए भी थैंकफुल रहोगे ना, कल देखिएगा आपके घर के बाहर कितनी बड़ी गाड़ी खड़ी रहेगी। तो कभी भी अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों के लिए रिग्रेट मत हुए, चीजों में भी आप थैंकफुल और मनी की अहमियत चीज से आप अपने लाइफ कितने अपने कितने खुशकिस्मत अपने पास पैसे हैं जब हम उन्हें दे पा रहे हैं और अपने घर में गेट काम कर रहे हैं। तो एक एक छोटी छोटी चीजें अपनी वजह से आप पैसों के लिए इतने ग्रेटफुल हैं। अगर आप थोड़ा सा भी ग्रेटफुल नहीं होंगे अपने पैसे के लिए, तो जो हमारे पास है आप धीरे धीरे अगर छोटी छोटी चीजों से आप खुश रहेंगे, ये पैसे की वजह से हमने ये खरीदा, तो आपके पास यूनिवर्स के पास इतना कुछ है, इतना कुछ भी मांग सकते हैं, कभी अंत नहीं यूनिवर्स का। तो उन्हें बस थैंकफुल करिए यूनिवर्स को कि थैंक्स फॉर गिविंग मी सच गुड लाइफ। इतने पैसे मेरे पास है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। तब देखिए जैसे फोटो में दिखाया गया था, जो मैंने आपको पहले दिखाया, पैसे की बारिश होने लगी थी अपने पास। यस। Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude. And so it has double the power to change the circumstances of your money. You'll be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude, which magically brings you riches. सेम थिंग है ये। आज की प्रैक्टिस क्या है, हम जितना अपने पैसों के लिए, अपनी मनी के लिए शुक्राना रहेंगे, लाइफ पैसे की चेंज हो जाएगी। तो हमें हर पल बस शुक्राना में रहना है। शुक्राना से जीवन ऐसे बदल जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी अब मेरे लाइफ का। थोड़ा दिन पहले हुआ था कि मैंने अपने एक जो मेरे साथ हुआ है, और मैंने उसे बैंगल ठीक करने दिया, और उन्होंने मुझे बोला कि मैंने तो आपको दे दिया, वो बैंगल मुझे वापस मिला ही नहीं। बोला आपने मुझे दिया ही नहीं है। मेरे साथ ऐसा चीटिंग हुआ था, पर मैंने तभी भी कोई कंप्लेन नहीं किया। मैं वॉज वेरी थैंकफुल कि कोई बात नहीं, हो सकता है उसकी जरूरत हो,
उसे मेरे से ज्यादा जरूरत तो इसलिए मुझे मिला नहीं। आप बिलीव करोगे, अगले दिन मेरे फादर ने मुझे ऐसे ही वो अपने बैंक गए, बोले यार तेरे को कुछ देने का बहुत मन कर रहा है स्वीटिया मुझे, और उन्होंने अपनी मम्मी का 2 बैंगल्स मुझे दिया। आई वाज शॉक कि ये क्या। तो ये छोटी, ये मेरे साथ खुद बीती हुई, मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। एक हफ्ते के अंदर मैंने कुछ उसके लिए कंप्लेन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, हमेशा थैंक्सफुल में रही कि कोई बात नहीं, शायद उन्हें उसकी दरकार होगी, भाई और मिलेगा, भगवान यूनिवर्स के पास तो इतना है, मुझे उसका डबल भी मिलेगा। तो छोटी छोटी चीजें अपने लाइफ में बहुत बहुत चेंजेस लाती है। बस ये अपने अंदर फीलिंग्स लाइए, कभी भी कंप्लेन मत लाइए, धीरे धीरे फीलिंग्स लाओगे ना, तो आप देखिएगा मेरे मैजिकल फ्रेंड्स, आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। Most people wouldn't think they complain about money, but if there is a lack of money in their lives, they are complaining without realizing it. कितने people Complaining. बोलते हैं, मेरे पास इतने कम पैसे कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी भगवान मुझे इतनी कमी क्यों दे रहा है पैसे की। तो ये उनका इंसाइट है, कहीं ना कहीं उन्होंने पक्का कोई ना कोई कंप्लेन किया अपने पैसों के बारे में। क्या अपने हस्बैंड हो तो बिजनेस में कहीं ना कहीं पक्का कुछ कंप्लेन किया है, इसकी वजह से आज मैं सिचुएशन में है। क्या अपने हस्बैंड को कोई चीज डील कर रहे हो अपना बिजनेस का, है ना कि भाई हम ये डील करे, यार ये मेरा पैसा मार के चला गया, ये तो ऐसे करके चला गया, इसने मुझे ऐसे नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं ऐसे कंप्लेन कर रहे हैं, इस वजह से हम बिजनेस में भी वो मेहनत के कारण भी वो उन्नति कर पा रहे हैं। शांति से बैठ के सोचना पड़ता कौन सा वजह है इसलिए इतना मेहनत करने के बाद भी हमें वो चीज नहीं मिल रहा है जो हमें चाहते हैं। एक बार 5 मिनट अपना हमें चाहते हैं सब एक्सरसाइज सब कुछ करें, एक बार बस 2 मिनट के लिए सब ऐसे बैठ जाए, क्लोज योर आईज एंड जस्ट थिंक फॉर 1 मिनट, कैसे कहाँ किस लिए अपने मनी का कंप्लेन करते हैं जिसे हमें ये मिल नहीं पाए। एवरीबडी प्लीज क्लोज योर आईज फॉर 1 मिनट एंड जस्ट थिंक अबाउट द मनी दैट यू वर नॉट थैंकफुल फॉर। Shalini, can we continue reading? Complaining happens through people's thoughts as well as their words. And most people, oh ये echo कर रहा है मेरा वो, हाँ it's echoing. Yeah, now it's done. आपका तो स्पीकर करिएगा। Now it's fine. Complaining happens through people's thoughts as well as, again it's echoing. I can listen to my hello. Complaining happens through people's. शालिनी, क्या तुमने स्पीकर ऑन कर रखा है? 1 मिनट, ये तो कोई स्पीकर का नहीं। आप एक बार म्यूट करो तो मुझे पता चल जाएगा वहां से हो रहा है। क्या मैं म्यूट करूं? जी एक बार करके देखो। या आई थिंक डिस्टर्बेंस इज फ्रॉम हर साइड। Yeah, Shalini, there is some disturbance from your end only. So, till she fixes it up, would anyone else like to read? Kitty di, Shalini di. Please read. Complaining happens through people's thought as well as their words, and most people are not aware of many things, many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come when money has to be paid out. So what is this? हम लोग क्या कंप्लेन्स करते हैं? कभी कभी हमारे थॉट में हम सोचते भी नहीं और हमारे थॉट में वो कंप्लेन्स आ जाती है, और वो जब हमारे थॉट में आती है तो हमारे वर्ड से वो कंप्लेन्स निकल जाती है विच वी आर लिटरली नॉट अवेयर ऑफ। तो हमें पहले अपने थॉट्स को, अपने मन को पूरा कंट्रोल करना चाहिए ताकि कोई भी कंप्लेन हमारे माउथ से नहीं निकले, कि हमारे वैसे जो भी वर्ड्स है वो कंप्लेनिंग वर्ड्स नहीं निकले। ऑफ कोर्स बिगेस्ट कंप्लेन्स कम व्हेन मनी हैज टू बी पेड आउट। जनरली हम लोग कंप्लेन कब करते हैं? जब हमें कोई मनी देना पड़ता है, व्हेन द मनी इज गिवन, तो जनरली वो कंप्लेन आ जाते हैं अपने माइंड में, अपने थॉट में, एंड इट कम आउट एज अ नेगेटिव वर्ड्स फ्रॉम आउट। सो whenever you are giving money to anyone, your thought should be, your feeling should be very
it should be positive. It should not be negative. So when the words that is coming out from your mouth, it's also positive. So first change your thought about paying your money whenever you are paying to anyone. Just change your thoughts first. If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is a greater stream of bills than there is the money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money, and complaining keeps you in poverty. So what is this? कभी हम लोग के पास बिल आते हैं भाई, कोई भी चीज के, चाहे इलेक्ट्रिक बिल ले लीजिए, चाहे कोई भी इंश्योरेंस बिल, कुछ भी बिल आते हैं तो कितने बार होता है कि हम इसे पे नहीं कर पाते हैं और फिर हम उस बिल्स के बारे में कंप्लेन करते हैं, अरे यार इतना पैसा आ गया, मैं इसे कैसे दूंगा, मैं तो इसे दे नहीं पाऊंगा. इट्स अ सर्कल. आप जब बिल के लिए कंप्लेन कर रहे हो तो ग्रेजुअली आप वो मनी के लिए कंप्लेन कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हो, आप मनी के लिए कंप्लेन कर रहे हो, आपके थॉट्स नेगेटिव आ रहे हैं, आपके वर्ड्स नेगेटिव आ रहे हैं, तो बस वो मनी के लिए अपनी कंप्लेन कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो वो हमें पॉवर्टी की तरफ लेके जा रहे हैं. तो हमेशा इस करें, अरे ये पैसा है मैं जरूर दे पाऊंगा, व्हाई आई हैव इनफ मनी टू पे दिस बिल. सो नेवर से आई डोंट हैव, हाउ विल आई पे दिस bill. You have to say yes, I have enough money to pay this bill. So whenever the bill comes, please don't say anything negative about the bill. Automatically you're complaining about the money also, and that will lead us to poverty. If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. And begrudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or services you have received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. So if you don't have enough money, the last thing हम क्या करेंगे normally, हम लोग उस बिल के लिए बहुत थैंकफुल होंगे, बहुत ग्रेटफुल होंगे, हम लोग उस बिल को बहुत थैंक्सफुल देंगे कि आई हैव गॉट इनफ मनी टू पे दैट बिल. टू हैव अ रिच लाइफ, और एक रिच लाइफ के लिए हम लोग को ईच एंड एवरी मोमेंट वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल अबाउट द मनी दैट वी हैव एंड द मनी दैट वी आर गोइंग टू गिव फॉर द गुड्स दैट वी आर रिसीविंग. हमारे पास भगवान ने इतना कुछ दिया है कि हम आराम से उस बिल को पे कर पा रहे हैं. तो हमें छोटे छोटे बिल के लिए भी हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए और उसके लिए कोई कंप्लेन नहीं करना चाहिए. To be grateful for a bill, think about how much you have benefited from the service or goods on the bill. If it's payment for rent or a mortgage, be grateful that you have a home and you are living in it. What if the only way ये जो बिल को मिलता है, हमें उसके लिए कैसे थैंकफुल होना चाहिए. समझे आपका रेंट का घर है एंड आपके लिए पेमेंट है कि एवरी मंथ यू हैव टू गिव रेंट, तो उस रेंट के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि आपके पास एक घर है और आप उसमें आराम से रह पा रहे हो. छोटी छोटी चीजें अपने को सोचना पड़ेगा किस मोमेंट में अपने किस लिए थैंकफुल होना चाहते हैं. ये नहीं कि हम रेंटेड घर में रह रहे हैं, हमारे पास अपना खुद का घर नहीं है, ये कभी भी अपने मन में मत लाइए. ये लाइए कि हाँ हम केपेबल है टू गिविंग दैट रेंट and we are living a luxury life in that house. So be grateful that the home that you are living in and you are able to pay that rent for that. कितने लोगों को जो रेंट घर है पर वो रेंट नहीं दे पा रहे. We are so lucky that we have a home to live and we are capable of giving the rent to that live. So be grateful that the bills that are receiving are so rent. What if the only way you could live in a home was by saving all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institution or places to rent? Most of us would be living on the streets. So be grateful to the lending institution or your landlord because they have made it possible for you to live in home or apartment. So ये क्या है, अगर हमारे पास नहीं होते, हमें लोन नहीं मिलता, बैंक नहीं होते, इंस्टीट्यूशंस नहीं होते जो हमें रेंट दे सकते, तब कैसे पे करोगे, कैसे रहोगे. तो ईच एंड एवरीथिंग इट्स अ सर्कल कि हाँ आप अपने घर को शुक्राना कर रहे हो और वो रेंट को शुक्राना कर रहे हो जहां से हमें ये मिला है कि आप रेंट दे सकते हो. लैंडलॉर्ड के लिए शुक्राना जिन्होंने आपको वो घर दिया है.
तो हमें एक सर्कल है, हर एक चीज के लिए शुक्राना की ये एक सर्कल है कि आप अपना घर के लिए शुक्राना हो, वो रेंट के लिए जहां से आपको रेंट दिया जा रहा है, और उस लैंडलॉर्ड के लिए शुक्राना जहां वो घर आपको दे रहा है, जहां आप रह पा रहे हो. If you If are you are paying a paying a bill, bill for a gas or electricity, think about the heating or cooling you received, the hot showers, and every appliance you were able to use because of the service. If you are paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had no traveling fast distances to talk to each person individually. Think about how many times you have been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips. So be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their services before you have paid them for तो them. ये आज हमें क्या बताया जा रहा है, हमें ये एक एक चीज के एग्जाम्पल इतने अच्छे से इस मैजिक बुक में बताया जा रहे हैं कि हमें जो भी बिल मिलता है वो कोई ना कोई चीज से कनेक्टेड रहता है. पहले मैंने आपको घर के बारे में बताया. अब इफ आप पेइंग अ बिल फॉर गैस और इलेक्ट्रिसिटी, तो वो हमें उस बिल के लिए थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि वो हमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, हमें लाइट दे रहा है, हमें अप्लायंस दे रहा है. गैस हमें बिल इसलिए शुक्राना है क्योंकि वो गैस हम किचन में ले जाते हैं तो हम खाना बना पा रहे हैं, हम उस खाने के लिए शुक्राना, उस गैस के लिए शुक्राना. तो उस बिल को सोचिए आप, वो बिल जो हमें मिल रहे हैं उसके अंदर कितने भेद ही अंदर कितने भेद हैं जिसके लिए हमें शुक्राना करना चाहिए. एक गैस वाला, अरे यार एक गैस है ना, उसके लिए कभी नहीं. आप एक गैस का बिल भी पे कर रहे हो तो उसे बहुत पॉजिटिव दिल से और उसे शुक्राना से पैसे दीजिए, क्योंकि उस गैस के कारण, उस बिल के कारण हम कितने अच्छे से अपने घर में खाना बना पा रहे हैं, हम खा पा रहे हैं. एक इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो उस बिल के लिए भी शुक्राना. अब आज से आपका ये टास्क है, जो भी बिल आपके पास आएगा और आप जो भी पेमेंट करोगे उसे हमेशा शुक्राना से, and thank you for the payment, thank you for the money that I've given to me God and I'm able to pay this bill. तो आप सोचो अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं होता तो आप क्या करते हैं, आपके पास इलेक्ट्रिक का बिल नहीं आता तो क्या आप अंधेरे में रहते हैं, हम क्या करते हैं. आप जब एक इमेजिन करिए कि बिल नहीं आता तो हम क्या कर सकते हैं, तो उस बिल के लिए भी कितना थैंकफुलनेस है. आज वो इलेक्ट्रिसिटी है जिसके कारण हम आज यहाँ बैठ के वाईफाई कनेक्ट करके एक दूसरे से यहाँ बात कर पा रहे हैं. सो बी थैंकफुल ईच बिल यू आर गेटिंग एवरी डे. Ever since I discovered phenomenal power of gratitude, I write the magic words, thank you, paid, on every bill as I pay it. And I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, thank you for the money. Then when I had the money to pay it, I would add, thank you, paid. Thank you, paid. So this is a very small thing that we are going to do today. मैंने जब भी डिस्कवर किया पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, आई राइट द मैजिक वर्ड्स थैंक यू पे. तो जब भी एक बिल आज हम लोग लेंगे तो उस बिल पे हम लोग लिखेंगे थैंक यू गॉड, थैंक बिकॉज आई वाज एबल टू पे दैट मनी, जो बिल आपने मुझे दिया छोटे छोटे. तो आई एम सो थैंकफुल कि मुझे इतना ऊंचा बना दिया, मुझे इतना एबिलिटी ला दिया मेरे में कि मैं वो बिल पे कर पा रहा हूँ. तो अब आज के बाद हमेशा हमें जो बिल मिलेगा उसे हम जरूर लिखेंगे थैंक यू पेड ऑन एवरी बिल as I paid and never miss a single one. तो हमें वो क्या बोलते, जब भी हमें बिल मिलता था उन्हें, वो हमेशा हर बिल में लिखते थे थैंक यू पे. एंड बिगनिंग में जब उनके पास पैसे नहीं रहते थे बिल पे करने के लिए, तभी भी वो अपने मन को हमेशा शुक्राना में रखते थे और मैजिकल वर्ड्स यूज करते थे थैंक यू फॉर द मनी. बिकॉज अगर आप मनी के लिए थैंक यू रहेंगे तभी आप जो आपके पास बिल आएगा तब आप उसे पे कर पाएंगे. Today you are going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them. Thank you for the money and feel grateful for having the money to pay the bill. Whether you have it or not, if you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward it to yourself as an email and write in the subject line in capital bold letters, thank you for the money. So आज हमारा क्या टास्क है, हमें पता है अभी देखिए लॉकडाउन, अभी इतना शॉपिंग हम लोग कर नहीं पा रहे हैं ना, इतने बिल्स आ रहे हैं,
पर हम लोग करेंगे जो भी आपके पास अगर पहले के बिल्स हो, जो अनपेड बिल्स हो आपके पास, हर एक बिल में आज हम जरूर लिखेंगे थैंक यू फॉर द मनी, बिकॉज इस मनी की वजह से वो बिल हमारे घर में आ रहे हैं और हम उस मनी को आराम से पे कर पा रहे हैं। तो ये हमारा आज का टास्क है। तो आज हम पढ़ेंगे कि टास्क हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट फाइन, Mama and Papa pay the bill. How will I do this exercise? yeah, I'll tell you later, dear. First, let us read this. Next, find 10 bills. Please read. Next, find bills. Who was reading? Sorry, Mercy. Next, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of the magic words, thank you, paid. As you write on each paid bill, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you have paid, the more money you will magically magnetize to you. तो आज हम क्या करेंगे, हम लोग एक 10 bills जो हम लोग we have already paid in the past, सबके पास बिल रखे रहते हैं। तो आज हमारा टास्क है हम लोग 10 बिल जो हम लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं उससे अपने उसको खोज के निकाल लेंगे और एक एक बिल में हम लोग लिखेंगे थैंक यू पेड, बिकॉज वो बिल हम लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो हमें 10 बिल्स आज ऐसा चाहिए जो हम लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं और एक एक बिल में आप लोग लिखेंगे थैंक यू पेड। एंड जैसे भी आप लिखोगे एक एक बिल में, आप जब भी लिखोगे थैंक यू पेड, बी ग्रेटफुल एंड विद द फीलिंग्स यू जस्ट राइट थैंक यू पेड, because we have already paid for that money and we are thankful for the God that we have got so many bills and I'm able to pay those bills. तो आज का आपका टास्क है, ये खत्म होने के बाद आप पहले 10 बिल आज इकट्ठा करोगे अपने पास जो ऑलरेडी हम लोग ने पे कर चुका है। From this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from the bill and write across the face of the bill the magic words, thank you, paid. And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write, thank you for the money, and feel as if you are saying thank you because you have the money to pay the bill. सो अभी तो फर्स्ट हम लोग करेंगे कि हम लोग 10 बिल इकट्ठा करेंगे, 10 बिल लेके आएंगे जो हम लोग ने ऑलरेडी पे कर चुका है एंड वी लाइक थैंक यू पे। एंड नेक्स्ट टाइम से आपके पास जब भी बिल आएगा प्लीज मेक अ प्रैक्टिस कि एक वेरी गुड यशस्वी, नेक्स्ट टाइम से जो भी बिल आएगा हम लोग एक हैबिट बना लेंगे अपना कि विल राइट थैंक यू पे। और कितने बार ऐसा होता है कि हमारे पास बिल आता है हम उसे पे नहीं कर सकते हैं, तभी भी हम लोग अपना मैजिकल पावर यूज करेंगे, अपना थैंकफुल यूज करेंगे कि थैंक यू फॉर द मनी, बिकॉज जितने टाइम हम लोग थैंक यू फॉर द मनी करेंगे उतने टाइम फीलिंग्स के साथ करेंगे उतने बार हमें वो बिल पे करने का मौका, सुनहरा मौका मिलेगा। तो उससे भी कभी भी नेगेटिविटी में मत आइएगा, अगर पास बिल पे करने का नहीं है तभी भी विल यूज दैट पावर, थैंक यू फॉर द मनी। Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you. Sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back $100. ये सेम ही चाहिए, फीलिंग ग्रैटिट्यूड फॉर द मनी आर पेड आउट गारंटीज विल रिसीव मोर। जितना हम ग्रैटिट्यूड के साथ उस पैसे को देंगे बिल के लिए उतना फीलिंग्स दुकान देखिएगा आपके पास घूम के पैसे इतने ज्यादा आ जाएंगे कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पास ये पैसे आ कहाँ से रहे। ग्रैटिट्यूड इज लाइक मैग्नेटिक attached to your money, so when you pay bill out of the money always returns to you sometimes equally। हम लोग जब भी बिल पे करते हैं ग्रैटिट्यूड के साथ, फीलिंग्स के साथ, कहीं ना कहीं से वो डबल होके किसी तरह हमारे पास आ रहे हैं, चाहे हम कितना भी पे करें। सो एंड ऑफ दिस इट्स नथिंग लाइक just whenever you are using the power of money, please be thankful when you are paying that money and you are getting that money. Always say thank you for the money I have paid. So today's assignment, please read. The money magic practice number 9, the money magnet. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list.
And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. तो ये Take 10 it. blessings तो हम हमेशा कर रहे हैं. I hope everybody is writing the 10 blessings every day because this is the most important task we have to do. ये जो हमें टास्क मिलते हैं ना, I request you all, please every day you have to write 10. जब तक हम 10 बार अपना थैंकफुल नहीं लिखेंगे ना, अभी मे भी हमें फीलिंग्स नहीं आए, पर धीरे धीरे आप देखोगे जैसे आप लिखते जा रहे हो वो फीलिंग्स आती जा रही है. तो इसे कभी भी मत छोड़िएगा. 10 blessings every day you have to write. Whatever you, जो भी आपके माइंड में आता है आप उसे लिखते चले जाओ. Take any unpaid bills you have, use gratitude's magical power, and write across each one. Thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. तो अभी सबसे पहले एक बिल लेंगे जो हमें अभी तक ने पे नहीं किया है. मे बी आपके ऑनलाइन में हो, आजकल सब ऑनलाइन मंगा रहे हैं, तो मे बी उसमें हो, तो उसमें भी यू कैन राइट इट डाउन. एंड इफ यू हैव एनी बिल रिसेंटली दैट यू हैव नॉट पेड, तो उसके क्रॉस में हम लिखेंगे थैंक यू फॉर द मनी, बिकॉज वो मनी अभी हमने दिया नहीं है, इसलिए हमें मनी रिसीव होगा. थैंक यू फॉर द मनी दैट आई एम गोइंग टू पे फॉर दैट बिल. सो आज सबसे पहला टास्क है कि यू विल टेक एन करंट बिल दैट यू हैव नॉट पेड, जो आपने पे नहीं किया है, और उसमें आप लिखोगे thank you for the money. Third task. Take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magic words. Thank you, paid. Feel truly grateful that you have the money to pay the bill. तो अब सबसे पहले हम 10 बिल्स लेंगे जो हमने पे कर चुका है, उसे अपने पास लेंगे और बहुत शांति से, बहुत मन से, फीलिंग्स के साथ उस बिल्स को अपने पास लिखेंगे. और सब बिल में, ईच एंड एवरी बिल यू हैव टू राइट थैंक यू पेड. ये नहीं आपने एक बिल में लिख दिया हो गया, हर 10 बिल्स में यू हैव टू राइट थैंक यू पेड. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. तो ये तो हमने किया था. तो रॉक प्रैक्टिस एंड थैंक टू राइट ग्रैटिट्यूड, ये दो चीजें हमें कभी भी मिस नहीं करनी है. Thank you everyone. Any questions regarding this? Can we stop the screen share? तो आज का चैप्टर हमारा बहुत छोटा सा चैप्टर था, पर ट्रस्ट मी इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चैप्टर्स. ये जो मनी को अट्रैक्ट करने का तरीका है वो ग्रैटिट्यूड से बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है. और इसमें जो लिखे थे कि जो भी हमारे बिल्स हैं, जो अनपेड बिल्स हैं, जब उनपे भी हम लोग थैंक यू फॉर द मनी लिखते हैं ना, तो मतलब ट्रस्ट मी, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी मैजिकल, बट दिस इज द राइट मोमेंट टू एक्सपीरियंस मैजिक. अगर आप लोग को, सब लोग को मैजिक एक्सपीरियंस करना है तो प्लीज आज का एक्सरसाइज एकदम जरूर से करिए. जितने पुराने बिल्स हैं जो अभी तक आपने पे नहीं किए हैं, उन सबको निकालिए, सब पे लिखिए थैंक यू फॉर द मनी. और जितने पुराने बिल्स पड़े हुए हैं जो आप लोगों ने पे कर दिए, उस पे लिखिए थैंक यू पेड. एंड लेट अस जस्ट सी द मैजिक. देखते कुछ तो होगा, आई एम श्योर कुछ बहुत अच्छा होगा. मैं तो आज जरूर से ये करने वाली हूँ. एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल्सो टू डू दिस टास्क. और दूसरी एक बहुत अच्छी बात, जरूरी बात है कि हम लोगों के ना सबकॉन्शियस में हम लोग बहुत सारे मनी से रिलेटेड ना थॉट्स सोच के रखते हैं. जैसे बहुत लोगों की आदत होती है ये बोलने की, अरे पैसे पेड़ पे थोड़ी ना उगते हैं, मेहनत करो तो ही पैसा आएगा. तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है. अगर आप पैसे के से प्यार करेंगे, पैसे के प्रति ग्रैटिट्यूड रखेंगे, तो पैसा जरूर आएगा. या सॉरी. सो इट्स लाइक अगर हम लोगों को सच में पैसा अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो पहली बात हम लोगों को उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखना है. दूसरी बात, अपने अंदर एक बार सोचिए कि क्या है जो मनी के बारे में अपने सोचते हैं. लेट अस जस्ट डिस्कस, मतलब लेट अस डिस्कस फ्यू थिंग्स जो हम लोगों ने बचपन में सुना होगा, या हम लोग ये बात किसी के दादा, नाना, नानी, मम्मी, पापा, किसी से भी. तो क्या चीजें हैं जो जनरली हम लोग पैसे के बारे में सुनते हैं, या क्या फीलिंग्स है पैसे के प्रति हर एक जन का. रेनू जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? रेनू जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है. रेनू जी, you'll have to check your mic. आप एक बार अपना माइक ठीक करिए
तब तक ब्रिजलता जी, वुड यू लाइक टू शेयर? क्योंकि बचपन से यही सुनने आया कि पैसे की कद्र करोगे तो पैसा तुम्हारी कद्र बढ़ाएगा। तो मेरे ख्याल से कद्र करना और कद्र बढ़ाना है तो ग्रेटिट्यूड ही हुआ कि पैसे को आप ग्रेटिट्यूड करो तो आपकी वो कद्र। सही बात है। आप जितना रिस्पेक्ट दोगे वो चीज आपके पास और आएगी। तो अगर आप पैसे की कदर करोगे, उसको रिस्पेक्ट दोगे, उसको लव दोगे, उसको ग्रेटिट्यूड दोगे, तो वो आपके पास उतनी और आएगी, जल्दी आएगी और ज्यादा लंबे तक आपके साथ रहेगी। तो इसीलिए बहुत जनों की आदत है, एक तो जैसे पर्स में हम लोग पैसे रखते हैं, तो बहुत जन क्या करते हैं ना, उल्टा पुल्टा रखा हुआ है और आपके बिल्स या उसके संग में ही पैसे रखे हुए हैं। तो वैसे मत रखिए। पर्स में जो भी पैसे हैं उसको सजा के रखिए, बड़े से छोटा रखिए, छोटे से बड़ा वैसे रखिए। जो जैसे अलग अलग खन्स होते हैं पर्स में, तो एक खन रखिए जिसमें आप अपने बिल्स, पेपर्स या और कोई सामान रख रहे हैं, पैसे को अलग से रखिए। जो चीज को हम लोग बहुत मान सम्मान देना चाहते हैं, जो हम लोग चाहते हैं हमारी तरफ अट्रैक्ट होकर आए, उसको हम लोग बहुत एहतियाती से रखना चाहिए। एंड वी शुड ऑल्सो, एक चीज और है, मतलब दिस इज लाइक आई कैन टेल यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जितना ज्यादा पैसे गिनोगे ना और गिनते गिनते आप ये फील करोगे, यू विल फील द मनी, मतलब स्टार्ट फीलिंग द मनी एंड स्टार्ट थैंकिंग द मनी। वो फील करेंगे, उसकी जैसे उसको प्यार देंगे। इसको जो एक पैसे को हाथ में लेकर बस उसको थोड़ी देर हाथ में रखिए और उससे बातें करिए, एंड ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी मैजिकल। मतलब दीज आर वेरी स्मॉल टिप्स बट दे वर्क मैजिकल। और मनी से रिलेटेड और बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जो अगर हम लोग फॉलो करें ना, जैसे कितने जन बोलते सुबह उठते ही सबसे पहले अपने सीलिंग के सामने एक नोट लगा दीजिए, जो भी नोट, एक बड़ा सा नोट लगा दीजिए, तो सुबह उठते ही व्हेन यू सी दैट, टेल आई लव यू मनी। तो सुबह पहले जब आप उसको लव यू बोलते हो, जब आप पैसे को गिनते हो, तब उसको बोलिए थैंक यू। और जब भी किसी को पैसे देते हैं ना, बोलते कि जब भी अपने फोल्ड करके देते हैं, हमेशा फोल्ड करके पैसा देना चाहिए। और जब भी आप फोल्ड करते हो तो एक होता है फोल्ड किया, तो फोल्ड वाला साइड होता है, और एक होता है ओपन साइड। तो इट्स ऑलवेज गुड कि जब भी आप दे रहे हो तो वो ओपन साइड अपनी तरफ, फोल्डेड साइड नहीं, क्योंकि फोल्डेड वो बंद हो जाता है ना, और ओपन क्या है, उससे हो रहा है कि ये पैसा आपकी तरफ भी आएगा। एंड वेन एवर आप जब भी किसी को देते हो ना, तो उसको हमेशा ये बोलते हुए दीजिए कि थैंक यू फॉर दिस मनी एंड आई होप दैट दिस कम्स बैक टू मी 10 गुना होकर। मतलब बस एक हैबिट डाल लीजिए कि जब भी किसी को पैसा दे रहे हो, अपने मन से ये निकालिए कि ये ना, जब ये मेरे पास 10 गुना होकर वापस आएगा। तो जब भी आप किसी को दोगे ना, आपको वो पैसे से एक होता है ना, जब पैसे से आप पार्ट हो रहे हो या पैसे आपसे दूर जा रहे हैं, आपके मन में वो हाई नहीं आएगी, क्योंकि आप तो ये बोल ही रहे हो कि तुम 10 गुना होकर मेरे पास आओगे। तो वो फीलिंग के साथ जब भी हम लोग पैसे को देते हैं, और जब भी हम लोग, और किसी का कोई भी अगर पैसा आपके पास है ना, कोशिश करिए जल्दी से जल्दी वो पैसा चुका देने का, क्योंकि जितना जल्दी आप पैसे चुकाने का रखेंगे ना, देखिए यूनिवर्स है ना, हमेशा पॉजिटिव चीजों को हेल्प करता है। अगर किसी का पैसा आपके पास है, अगर आप वो पैसा सोचोगे कि बाद में दे दूंगी, उसने तो नहीं मांगा है तो क्यों दे, तो क्या पता जो पैसा आपकी तरफ आने वाला है ना, उसमें भी एक ब्लॉक आ जाता है। इसलिए अगर आपके पास पैसे हैं तो जिस किसी का भी पैसा चुकाना है ना, सबसे पहले चुका दीजिए। कभी भी किसी का कोई ऋण नहीं रखना चाहिए। आप देखोगे जितना जल्दी आप सबके पैसे चुकाओगे ना, उतना जल्दी आपके पास पैसा हो रहा है, और जितना आप किसी का पैसा रख के रखोगे ना, उतना आपको वो पैसा आने में दिक्कत होगी। इसीलिए जिसका भी किसी का भी पैसा रहता है ना, तुरंत वापस दे देना चाहिए, और आप देखेंगे कि वो पैसा आपके पास 10 गुना होकर वापस आएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी है चीजें मनी को लेकर, बट लेट अस स्टार्ट फॉलोइंग देम, लेट अस सी कैसे ये हम लोग की लाइफ में होती है। जब लास्ट टाइम हम लोगों ने मनी वाला किया था, थैंक यू मनी वाला, तो आप लोगों ने किसी ने किया था वो एक्सरसाइज? So anyone would like to share? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हाँ प्लीज दिखाइए ना। I wanted to ask something. Yes, beta. You was a manager in which you do. I couldn't understand that. What are you saying, beta? I can't hear you. थोड़ा loudly बोलिए। The manager in which we had an invisible manager.
did we have to do? I couldn't understand. ओके, आई विल टेल यू. आपको बस उस दिन मैनेजर वाले टास्क में यही इमेजिन करना था कि कोई भी चीज आप देखते हो तो आप उसके प्रति थैंकफुल होइए. एंड व्हाट यू कैन डू, ये इमेजिन करिए कि आपका एक मैनेजर आपके साथ है जिसको आप बोल रहे हो कि ओ, जैसे यू नीड समवन टू टॉक टू ना, तो आप समझिए आपके बगल में एक मैनेजर है आपका. तो अगर मान लीजिए आपने फैन देखा, ओ थैंक यू फैन फॉर गिविंग मी गुड ये एयर. इफ यू सी द सोफा, थैंक यू सोफा फॉर मेकिंग मी सिट कंफर्टेबली. तो मतलब कीप टॉकिंग टू योर मैनेजर. और वो मैनेजर को आपको क्या करना है, जस्ट बी लाइक योर फ्रेंड बडी, जिसको आप कोई भी चीज जो आपको आप जिसके लिए थैंकफुल फील कर रहे हो आप उसके साथ शेयर कर. ठीक है. तो इट्स लाइक द होल डे यू हैव टू जस्ट कीप टॉकिंग टू दैट मैनेजर एंड उसको आपको बताते जाना है कि आप क्या क्या चीज के लिए थैंकफुल हो. So we have to also write it somewhere. No, this you don't have to write, but you have to practice. एक पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक आपको सिर्फ अब इमेजिन करना है कि एक इमेजिनरी मैनेजर आपके साथ है और आपको उसको हर चीज के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाना है. ठीक है. Thank you. वेलकम. ओ वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस. कहाँ रखूं? ये मैं अपने कबर्ड में रखती हूँ. सामने ही वो कबर्ड हमेशा खोलती रहती हूँ ना, बार बार पैसे लेने के लिए, वहीं पे रखा हुआ है. आप कहाँ वेरी नाइस. आप मेरे से पूछ रहे हो ना? मैं कबर्ड में रखती हूँ, मेरे मनी धन में, जहाँ से मैं रोज पैसा निकालती हूँ, वहीं पे रखा है. बार बार इस पर नजर जाती है. हाँ, ये बेस्ट है. जहाँ पे आपका रोज नजर जाए वहीं पे इसको रखना चाहिए, ताकि जितनी बार आप इसको देखें उतनी बार आप ग्रेटिट्यूड दे सकें. हाँ, उतनी बार मैं इसको पढ़ लेती हूँ. हाँ, ये बेस्ट है. Yes, Yashaswini, you want to share something? What? How should we do this practice? Can you be a bit louder? आज का प्रैक्टिस कैसे करना है? आज का टास्क में क्या करना है? हाँ. So, Sweetie, can you just explain them कि आज उनको करना क्या है? तो डियर फर्स्ट क्या करना है आपको, कोई भी आपके पास बिल, आपने कुछ सामान खरीदा होगा ना, कोई एक बिल होगा जो आपने नहीं खरीदा, आपके पास है उसका कुछ नहीं है, तो एक काम करें, मम्मी से जाके ले लो. मम्मी के पास बिल्स होंगे, मम्मी को बोलो कि मम्मी आपने कोई भी बिल्स पे किए हैं वो बिल्स मुझे दे दीजिए, 10 बिल्स. ठीक है. और वो 10 बिल्स पे लिखो. that we have to write thank you for the money for unpaid bills. नहीं, पहले तो पेज मम्मी के पास 2 तरह के बिल्स होंगे. एक तो बोलिएगा जो बिल्स आपने पे कर दिए पहले वो दीजिए. ठीक है. वो बिल्स पे आप लिखिएगा 10 बिल्स वैसे लीजिएगा अगर हो सके तो, उनके पास हो तो 10 बिल्स जो मम्मी ने पे कर दिए उस पे लिखिए थैंक यू पेड. ठीक है. और फिर मम्मी से पूछिए कि कोई भी बिल उनका ऐसा है क्या जो अनपेड है, तो उसके लिए ऊपर लिखिए थैंक यू फॉर द मनी. ठीक है. हम ऐसा भी कर सकते हैं, कभी हमारे पास बिल ऐसा नहीं हो जो हमने अनपेड बिल नहीं हो हमारे पास, इमेजिनरी बिल आपको चाहिए हो कि हाँ ड्रेस वेरी कॉस्टली बिल होते भी डोंट हैव एनी बिल, ताकि हम यू कैन ऑल्सो डू दिस कि एक पेपर पे आप है ना लिखो, या जैसे कोई भी रुपए का प्रिंट आउट निकालो और उस पे लिखो आई लव यू मनी, थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद मी. थैंक यू मनी, आई लव यू मनी, थैंक यू मनी. वो एक है ना प्रिंट आउट निकाल लो और उस पे आई लव यू मनी, थैंक यू मनी ये लिखकर इसको अपने सामने रखो और एवरीडे उसको देखकर थैंक यू बोलो. ठीक है. Okay. Anyone else would like to share anything? We still have 10 more minutes. If anyone would like to share. Ekta, would you like to share something? Ekta, Kanika, Shalini. Yeah, I want to. One thing. Hello.
Yeah, the moment this magic session started, like there's one improvement, a very drastic improvement which happened. That is like I have really reduced my complaining list. मतलब बहुत कम कंप्लेन करने लग गई हूँ चीजों के लिए, which is very good. Thank you for that. Thank you. See, हमारे words for ना this बहुत session. important होते हैं. Like our words are very very important. What words we are using, they make a lot of difference in our lives. और हम लोग याद ही नहीं रखते, हम लोग सारे दिन कंप्लेन करते रहते हैं. और जितना हम लोग कंप्लेन करते हैं कोई भी चीज के लिए, उतना हम लोग एक नेगेटिव जोन में चले जाते हैं. तो उतना ही जो पॉजिटिव चीजें होती है ना, हम लोगों से दूर चली जाती है. तो अगर हम लोग पॉजिटिविटी चाहते हैं, तो वी हैव टू रिमेन इन दैट पॉजिटिव जोन ऑल द टाइम. वी हैव टू कीप एक वर्ड जो अपने बोलते हैं ना, बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए. क्योंकि कितनी बार होता है ना, हम लोग बहुत जनरली चीजें बोल देते हैं, पर वो नहीं करना चाहिए. वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द वर्ड्स वी यूज. क्योंकि जो आप बोलोगे वो आपके साथ होगा. और अगर आप कंप्लेन करोगे तो वो और होगा. अगर आप अच्छा बोलोगे तो वो और होगा. तो ये हम लोगों के ऊपर चॉइस है कि हम लोग अपनी लाइफ को कैसे चूज करना चाहते हैं. लाइफ में हम लोग क्या अपने लिए चूज करना चाहते हैं, और क्या हम लोग अपना लाइफ को आगे किस तरह से देखना चाहते हैं, विथ मोर पॉजिटिविटी और विथ मोर नेगेटिविटी, है ना. एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. ये इजी नहीं है करना, पर कंग्रेचुलेशंस. This practice makes us to look the positive side of the life. हाँ, This practice makes us to look at the positive side of the life. हर आदमी की लाइफ में नेगेटिव पॉजिटिव साइड होते हैं, बट आप किधर देखिए, देख रहे हो? नेगेटिव पॉजिटिव सब है यहाँ पर. अब अपना देखने का नजरिया है. बस वही मैंने बोला ना, जैसे ग्लास आधा खाली आधा भरा है. अब ये आपका देखने का नजरिया कि आप उसको आधा भरा बोल रहे हैं कि कोई इसको बोलेगा आधा खाली है. तो अपने देखने के नजरिए से पता चलता है कि हम लोग की लाइफ कैसी है. बस जहाँ नजरिया बदलेगा वही हैप्पीनेस आ जाएगी. तो सब अपने एटीट्यूड इज एवरीथिंग. बस अब देखिए, दुनिया कभी भी अपने सोचे कि अपने कुछ करने से दुनिया बदल जाएगी, ऐसा नहीं. दुनिया एज इट इज रहेगी. क्योंकि हम लोग इस पूरे यूनिवर्स में एक छोटे से स्पेक हैं. हम लोग सोचते हैं कि हमारे करने से कुछ बहुत हो जाएगा, हमारे खुद के लिए हो सकता है, पर आप सोचोगे कि आसपास में हम लोगों की क्या अहमियत है. वी आर जस्ट लाइक अ स्पेक इन द ड्रॉप. तो क्या है ना कि हम लोग अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं. पर फैक्ट ये है कि यू नो वी शुड जस्ट रिमेन इन द, मतलब हम लोग अगर खुद अपने आप को ठीक रखेंगे ना, तो हमारे आसपास सब चीज हम लोग को अच्छी दिखेगी. बोलते ना, स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं है, वो यहीं पर है. हमारे नजरिए से डिपेंड करता है कि हमारे आसपास स्वर्ग है कि हमारे आसपास नरक है. अगर द वे यू रिएक्ट एक्चुअली मेक्स कि आपके अराउंड में कैसी सिचुएशंस है. कितने लोग हैं आसपास, कुछ भी. जैसे एक एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है कमल और कीचड़ का. कीचड़ चारों तरफ रहे पर फिर भी कमल कितना खूबसूरत रहे. तो हम लोगों को भी आसपास आपके क्या हो रहा है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. आप किस हिसाब से खुद को देख रहे हैं और चारों तरफ को, अगर आप खुद अंदर से अच्छे होगे, पॉजिटिव होगे, सुंदर होगे, तो बाहर में चाहे कैसी भी दुनिया हो, आपके लिए तो बहुत खूबसूरत होगा. जैसे कमल में तो हमेशा सुगंध ही आती है ना, तो वैसे ही आप इतने सुगंधित रहोगे कि कीचड़ में से सब आपको ले जाएंगे. और जैसे एक अजगर है, वो जो चंदन का पेड़ होता है, चंदन के पेड़ पर अजगर हमेशा लिपटा रहता है, पर फिर भी चंदन की शीतलता कभी भी खत्म नहीं होती है. अजगर कितना विषैला होता है, पर फिर भी चंदन अपनी शीतलता कभी नहीं छोड़ता. वैसे हमारे आसपास चाहे कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो, चाहे कैसे भी सिचुएशंस हो, ये हमारी चॉइस है कि हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं. ये हमारी चॉइस है कि उसमें हम क्या देखना चाहते हैं, उसमें हम पॉजिटिव देखना चाहते हैं कि नेगेटिव. और ट्रस्ट मी, हर सिचुएशन की पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों होती है. और कोई भी सिचुएशन अगर हमारी लाइफ में आती है ना, वो कोई ना कोई हमें लेसन सिखाने आती है. अब ये हमारे ऊपर है कि हम लोग वो लेसन को सीख करके आगे बढ़ते हैं, कि उस लेसन को बिना सीखे हम लोग उस बोलते ना, उस लीला में फंस जाते हैं. जैसे बोलते ना, हर इंसिडेंट जो हमारे लाइफ में आता है वो छोटी छोटी लीला के रूप में आता है.
अब अगर वो लीला का हम लोग समझ लेंगे कि लीला क्यों हमारे साथ घटित हुई है, कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए, और ट्रस्ट मी, एवरी circumstance, every situation, every challenge comes in our life to take us to one step higher. लेकिन अगर हम लोग वो समझ पाए, उस सिग्नल को, गॉड के उस गॉड सेंट मैसेज को हम लोग समझ पाए, तब हम लोग उसको एक पायदान की तरह समझ करके आगे बढ़ जाते हैं. लेकिन अगर हम लोग वो नई मैसेज ग्रहण कर पाते हैं ना, तो हम लोग दुख में हो जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं, फिर हम लोग वो लीला में फंस जाते हैं, बार बार उस लीला, उस सिचुएशन को कर्ज करते हैं कि अरे ये ऐसा क्यों है, मेरी सास ऐसी क्यों है, मेरा हस्बैंड ऐसा क्यों है, मेरे बच्चे ऐसे क्यों. अगर आप समझोगे, कोई भी बंदा अगर आपके साथ कोई पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर रहा है, कुछ ना कुछ उसके पास कारण होगा, कुछ ना कुछ कारण होगा जो आपको अपने अंदर समझना है, और आपको उसमें you have to come in balance with it. This entire world is about coming in balance. अगर हम लोग अपने आप को एक बैलेंस सिचुएशन में ले आएंगे ना, तब नथिंग, बाहर का कुछ भी हमें इफेक्ट नहीं कर पाएगा. Anyone else would like to have any sharing? Yeah, Agarwal, who is there? You would like to share? Yeah. You're smiling. You want to share something? He's a young boy, so मेरी nice आवाज to आ रही see है? him. हाँ आ रही है. हाँ बिल्कुल. अब आ रही है. क्या आप कुछ कह रहे थे विनू जी? आज की मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी कि सबसे पहले खुद से प्यार करना है. हम हमेशा ये सोचते रहते हैं, ना मेरा ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं ये करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मेरा ड्रेस अच्छा नहीं है, मेरा फेस अच्छा नहीं है, मैं कैसी हूँ. लेकिन सबसे पहले खुद से प्यार करो. तब ये प्रैक्टिस हम रोज सामने खड़े होके करेंगे. यशस्विनी, ये मिरर वर्क भी आज करना है. आंटी एक मिरर वर्क डालेंगी, रोज मिरर के सामने खड़े होके कुछ बोलना है अपने आप को कि आई लव माई सेल्फ, आई एम सो नाइस. अपने आप को अच्छी अच्छी बातें बोलनी है एवरी डे. ठीक है? वो लोग बिल के साथ क्या करना है? I can't hear you, Yashi. I can't hear you. You will have to increase your volume. And you will have to speak louder. Very nice, Kashfi. Very nice. क्या बिल के साथ करना है? बिल के संग क्या करना है वो वापस पूछ रही है. आप ग्रुप में डाल सकते हो. किसके साथ? बिल के संग बिल का क्या करना है वो ग्रुप में डाल दीजिएगा, लिख के. Yeah, वो we put it in the group so you can do it. ठीक है ना? तो shall we end the session today? Yes. चलिए. Okay.